پائیدار معاشی ترقی کے لیے صنعت و حرفت کے فروغ اور بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ ناگزیر۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں سرمایہ کاری میں اضافے اور معیشت کی مجموعی ترقی کے لیے شعبہ جاتی اصلاحات کا جائزہ۔ مؤثر ترقیاتی پالیسیوں کی تشکیل اور نفاذ کے لیے تمام وزارتیں باہمی تعاون اور ہم آہنگی سے کام کریں۔ برآمدات میں اضافہ حکومتی ترجیحات کا اہم حصہ ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ یہاں ہسپتال بنائے تو ہم نے بنائے، بجلی کے کارخانے لگائے تو ہم نے لگائے، یہ جو نلدر کا منصوبہ ہے ہم نے مکمل کیا ہے، اور دوسرے منصوبے ابھی تک مکمل نہیں ہوئے۔ اور مجھے بتائیں کسی اور پارٹی کا نام لے کہ کسی نے یہاں پہ اینٹ بھی رکھی ہو۔ گلگت بلتستان سی پیک کا مرکز ہے، علاقے میں سیاحت کی ترقی سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ گلگت بلتستان کے مسائل کے حل کے لیے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے بات کروں گا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے طلباء کو وظائف اور لیپ ٹاپ دیں گے۔ مسلم لیگ نون کے علاوہ کسی جماعت نے گلگت بلتستان میں کام نہیں کیا، اپنی کارکردگی کی بنا پر ووٹ مانگتے ہیں۔ صدر مسلم لیگ نون محمد نواز شریف کا گلگت میں عوامی اجتماع سے خطاب۔ گلگت بلتستان کے عوام دل کے بہت قریب ہیں، عوام کو ریلیف کی فراہمی ترجیح۔ خطے کی ترقی کے لیے بنیادی ڈھانچے کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ عوامی نمائندے مسائل کے حل کے لیے کردار ادا کریں۔ صدر مسلم لیگ نون محمد نواز شریف کا گلگت بلتستان کور کمیٹی کے اجلاس سے خطاب۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ واحد سیاسی جماعت ہے جو غریب طبقہ کا نمائندگی کرتے ہیں، جنہوں نے کسانوں کو، مزدوروں کو، محنت کشوں کو حقوق دیا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک ہی ادارہ ہے جو ہر غریب کا گھر تک پہنچتا ہے۔ گلگت بلتستان کے عوام کو ہمیں حق حاکمیت دلوانا پڑے گا، حق ملکیت دلوانے پڑے گا، اور جو نوجوان ہیں ان کے حق روزگار دلوانا۔ گلگت بلتستان کے وسائل پر پہلا حق عوام کا ہے۔ پیپلز پارٹی غریب طبقے کی نمائندہ جماعت ہے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے مزدوروں اور کسانوں کو حقوق دیے۔ پیپلز پارٹی نوجوانوں کو روزگار فراہم کرے گی۔ BISP کے تحت غریب طبقے کی ہر ممکن مدد کی جا رہی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا اسکردو میں جلسے سے خطاب۔ گلگت بلتستان عام انتخابات میں 5 روز باقی، انتخابی سرگرمیاں زور و شور سے جاری۔ سیاسی جماعتوں کی انتخابی مہم میں تیزی، جلسوں، کارنر میٹنگز اور عوامی رابطہ مہم کا سلسلہ جاری۔ شفاف اور غیر جانبدارانہ الیکشن کے انعقاد کے لیے انتظامات مکمل۔ 24 جنرل نشستوں کے لیے سیاسی جماعتوں سمیت آزاد امیدوار مد مقابل۔ 9,58,480 ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ پاکستان اور کویت کا علاقائی امن و استحکام کے لیے تعاون جاری رکھنے اور برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کا کویتی وزیر خارجہ شیخ جراح جابر الاحمد الصباح سے ٹیلی فونک رابطہ۔ کویتی وزیر خارجہ کی پاکستان کے مصالحتی کردار اور سفارتی کوششوں کی تعریف۔ پائیدار امن کے لیے مذاکرات اور مسلسل رابطہ ناگزیر ہے، نائب وزیر اعظم۔ ایک ہفتے میں ایران کے ساتھ معاہدہ طے پانے کے لیے پر امید ہوں۔ معاہدے کے تحت جنگ بندی میں توسیع اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ بحری آمد و رفت کے لیے کھول دیا جائے گا۔ پیغامات میں تعطل کے ایرانی فیصلے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ امریکی شرائط پر ڈیل کرنے پر ایران کی آمادگی تک بحری ناکہ بندی جاری رکھیں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی ٹیلی ویژن کو انٹرویو۔ لبنان میں اسرائیلی کارروائیاں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیلی وزیر اعظم پر شدید برہم۔ لبنان پر جارحیت جاری رکھنے پر نیتن یاہو پاگل اور ناشکرا شخص قرار دے دیا۔ بیروت پر حملے نہیں ہونے چاہیے ورنہ اسرائیل دنیا میں مزید تنہا ہو جائے گا، صدر ٹرمپ کا سخت انتباہ۔ امریکی میڈیا
सेहूनी फोर्सेस के लबनान में तिब्बी अमले, सहाफ़ियों और आसार कदीमा पर हमले। लबनान में इसराइली हमलों में इजाफे और जनूबी लबनान के तारीखी बेओफोर्ट किले पर गासिबाना कब्जे के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास। इसराइली बर्बरियत और हद से बढ़ती हुई इसराइली फौजी कार्रवाइयों की मजम्मत। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में खुफिया इतलात पर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 17 खारजी दहशतगर्द जहन्नम वासिल। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकानों को मुअस्सर तरीके से निशाना बनाया। ISPR लबनान में मासूम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान इसराइली इक़दामात की शदीद मजम्मत करता है। लबनान पर इसराइली जारियत आलमी कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। इसराइली हमले खित्ते में क़याम अमन की कोशिशों को मुतासिर कर रहे हैं। मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद का जनरल असम्बली से खिताब। पाकिस्तान आलमी अमन का जामिन। ईरान अमरीका जंगबंदी में पाकिस्तान के सालिसी के किरदार की दुनिया मुतरफ। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराह काया कैलिस की जानिब से पाकिस्तान की कायदाना सलाहियतों और कामयाब सफारतकारी की बेहद तारीफ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमरीका ईरान के दरमियान रुकावटें दूर करने में अहम किरदार अदा किया। सालिसी का किरदार पाकिस्तान की अहमियत और आलमी सतह पर उस पर भरपूर एतमाद का आकाश है। आलमी जरीदा अल अरबिया। रवां साल जून में बिजली सार्फिन को 20 पैसे फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। हुकूमत ने बरवक्त इक़दामात से बिजली सार्फिन को बड़े इजाफी बोझ से बचाया। सार्फिन पर तकरीबन 38 अरब रुपए का इजाफी बोझ मुंतकिल नहीं किया गया। जून में बिजली निर्ख जनवरी ता मई 2026 के मुकाबले में बरकरार रहेंगे। सहमाही एडजस्टमेंट में 1.93 रुपए फी यूनिट की कमी, मजमूई रिलीफ 65 अरब रुपए होगा। एलामिया पावर डिवीजन। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद स्टैब्लिशमेंट डिवीजन का सिविल सर्वेंट्स रूल्स 2026 का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। सिविल सर्वेंट्स की गैर मुल्की और दोहरी शहरियत से मुताल्लिक नए कवायद नाफिज। शरीक हयात और ज़ेर कफालत बच्चों की गैर मुल्की शहरियत की तफसीलात देने के पाबंद होंगे। गैर मुल्की पासपोर्ट, मुस्तकिल रिहाइश, इमिग्रेशन स्टेटस और दीगर गैर मुल्की वाबस्तगियों से मुताल्लिक भी मुकम्मल तफसीलात फ्राहम करने के पाबंद। कोई भी सिविल सर्वेंट बगैर पेश की इजाजत गैर मुल्की शहरियत हासिल नहीं कर सकेगा। गलत मालूमात या हकायक पोशीदा रखने वाले अफसरान की मुलाजमत भी खत्म की जा सकेगी। तारीख में पहली बार पाकिस्तान के 2 मंसूबे अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर शॉर्ट लिस्ट। बच्चों और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब का मॉडल आलमी सतह पर तस्लीम। WSIS इनामात 2026 में पंजाब का वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी मेरा प्यारा आलमी चैंपियन प्रोजेक्ट करार। वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन भी दुनिया के टॉप 20 मंसूबों में शॉर्ट लिस्ट। वज़ीर आला पंजाब मरियम मेरा प्यारा UN ग्लोबल चैंपियन करार दिए जाने पर इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान और इटली के दरमियान सफारती पासपोर्ट पर वीजा खत्म करने का मुआहिदा। पाकिस्तानी सफीर और इटली के सेक्रेटरी जनरल ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। मुआहिदा दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी एतमाद और दोस्ती की अलामत करार। लेबर मोबिलिटी मुआहिदे से पाकिस्तानियों के लिए 10,500 मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। पाकिस्तानी सफीर। मकबूजा कश्मीर के ज़िला राजौरी में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ 11वें रोज़ भी जारी। तमाम रास्ते सील, घर घर तलाशी, इलाका फायरिंग और ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ों से गूंज उठा। पूंछ, किश्तवाड़ और बारामूला अजला में भी मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ जारी। कठवा, उधमपुर और हिंदवाड़ा में कश्मीरियों के अवाम दुश्मन भारतीय पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। जम्मू में एहतजाजी मुजाहिरीन पर भारतीय पुलिस की फायरिंग। कठपुतली वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का जम्मू कश्मीर की रियासती दर्जे की बहाली का मुतालबा।
भारतीय रियासत मणिपुर बेरहम बीजेपी सरकार की सफाकियत की नजर, मोदी इंतकामी सियासत पर उतर आया। मणिपुर में बेगुनाह शहरियों के घरों को नजरे आतिश कर दिया गया। मणिपुर के अलहदगी पसंद गिरोहों के सामने बेबस भारतीय फौज निहत्थे शहरियों पर ताकत आजमाने लगी। भारतीय अस्करी गिरोह आसाम राइफल्स ने मणिपुर के इलाके अखरोल में बेगुनाह लोगों पर फायरिंग करके घरों को आग लगा दी। कुकी तंजीमों का वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात और जिम्मेदारों का तयन करने का मुतालबा। अफगान तालिबान की अमन के वादों के बरक्स दहशतगर्दी, अफगान तालिबान रजीम का भयानक चेहरा बेनकाब। दहशतगर्द गिरोहों के खात्मे के बजाय खित्ते को गैर मुस्तहकम करने वाले शरपसंदों की पुश्त पनाही में मसरूफ। अमरीकी जरीदे ने अफगान तालिबान की दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती और अफगान सरजमीन से पनपती दहशतगर्दी को बेनकाब कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और पिघलते ग्लेशियर से लैंडस्लाइडिंग के खतरात में इजाफा, एनडीएमए का अलर्ट जारी। लवाई टनल, चित्राल, दीर, स्वात, चराहे कराकुरम और नारायण कागान रोड हसास करार। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी लैंडस्लाइडिंग का खतरा, शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। Oh, ball in. Nice through mid-wicket. What a shot that is. That's the go-to shot and it... लाहौर में दूसरा वनडे मैच पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान को 232 रन का हदफ, 50 ओवर्स में 9 विकेटों पर 231 रन बनाए। कैमरॉन ग्रीन के 53 और जॉश इंग्लिस के 51 रन। शाहिद आफरीदी की 3, हारिस रऊफ, अरफात मिन्हास और अबरार अहमद की 2-2 विकेटें। पाकिस्तान की बैटिंग जारी, मैच पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान को विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2028 की मेजबानी सौंपने की मंजूरी दे दी। आईसीसी इजलास में इवेंट की इंतजामी और शेड्यूलिंग मामलात की मंजूरी। विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2028 में मजमूई तौर पर 12 टीमें हिस्सा लेंगी। मुकम्मल शेड्यूल आइंदा साल जारी किया जाएगा। वियतनाम में अंडर 17 एशियन बीच रेसलिंग चैंपियनशिप, पाकिस्तान ने 1 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीत लिया। 90 किलोग्राम कैटेगरी में मोहम्मद उस्मान लगारी गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब। 70 किलोग्राम कैटेगरी में हसन अली भोला चांदी के तमगे के हकदार ठहरे। फ्रेंच ओपन टेनिस, इटली के माथियो अर्नाल्डी और माथियो बेटेनी क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गए। कनाडा के फेलिक्स ओगर इलियासन ने भी लास्ट 8 में जगह पक्की कर ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में खबरनामे के नाज़रीन और सामीन को खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी। मैं हूं उस्मा चौधरी। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस, और मौसम की खबरों के लिए मैं आपके साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। इंडस्ट्री के हमरा, हुनर से रोजगार का सफर। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खुसूसी इकदाम। नेवटैक और सॉल्ट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के बाहमी इश्तराक से हाई डिमांड स्किल्स में मुफ्त फन्नी तरबियत के मौके, माइनिंग टेक्निक्स फॉर सॉल्ट एक्सट्रैक्शन, सॉल्ट पैकेजिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, वैल्यू एडिशन एंड बाई प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन द सॉल्ट इंडस्ट्री और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन। दरख्वास्त देने के लिए nsis.navtag.gov.pk। हुनरमंद नौजवान, रोशन पाकिस्तान। सरसब्स की नाइट्रोफॉस और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट से हासिल करें कपास की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार और कामयाबी के सफर में रहें आगे। सरसब्स, जमीन की जान, फसल की शान।
वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का अज़्म, इंडस्ट्री के हमरा हुनर से रोजगार तक का सफर। लाइफ स्टॉक एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के इश्तराक से नेफ्टेक लाया प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम और SIFC की मुशावरत से अंदरूने मुल्क व बैरून मुल्क हाई डिमांड स्किल्स शोबाजात में मुफ्त तरबियत का आगाज। फिश फार्मिंग, असिस्टेंट स्लॉटरर, सर्टिफिकेशन प्रैक्टिसेस, कोल्ड चेन मैनेजमेंट एंड एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक्स और मीट प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन एंड प्रिजर्वेशन के 3 माह दुरानिये के कोर्सेज के लिए आज ही nsis.navtech.gov.pk पर अप्लाई करें। हुनरमंद नौजवान, रोशन पाकिस्तान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सरमायाकारी में इजाफे और मईशत की मजमूई तरक्की के लिए शोबा जाती इस्लाहात और पॉलिसी इक़दामात पर जायज़ा इजलास हुआ। इजलास में मुताल्लिक़ा वजारतों की जानिब से मुख्तलिफ पॉलिसी तजावीज़ पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्की मईशत की पायदार तरक्की के लिए सनत व हिरफत का फ़रोग और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा नागुज़ीर है। मुल्की पैदावार में इजाफे के साथ साथ सनती मसनूआत की बरामदात बढ़ाने के लिए मौसर पॉलिसी इक़दामात हुकूमत की तरजीह है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि सनत व तिजारत और मईशत के मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात, तवीलुल मुद्दती मुआशी अफादियत और अवामी फलाह पर तवज्जो मरकूज होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल की तवानाई की ज़रूरियात को मुतबादिल एनर्जी के ज़राए से पूरा करने के लिए जामे हिकमत अमली पर भरपूर अंदाज में काम हो रहा है। वज़ीर आज़म ने तवानाई की बचत और सस्ती ट्रांसपोर्ट की मुल्की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जामे और मौसर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी को वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। मुख्तलिफ शोबों में जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए तमाम वज़ारतें माहिरीन की मुशावरत को यकीनी बनाएं। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि मौसर तरक्याती पॉलिसी की तश्कील और नफाज के लिए तमाम वज़ारतें बाहमी ताउन और हमांगी के साथ काम करें। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ का हुआ गिलगित बल्तिस्तान में फकीदुल मिसाल इस्तकबाल। गिलगित की फिजाएं पुरजोश खैर मकदमी नारों से गूंज उठी। सदर मुस्लिम लीग नून ने अपने खिताब में गिलगित बल्तिस्तान को दिल के करीब करार देते हुए इलाके के लिए तरक्याती मनसूबों और CPEC से मुताल्लिक अहम ऐलानात भी किए। इनकी तफसील जानते हैं मोहम्मद फैसल राव से। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने गिलगित में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि किसी पर तंकीद करके नहीं, अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मांगते हैं। हमारे अलावा किसी जमात ने गिलगित बल्तिस्तान में काम नहीं किया। गिलगित बल्तिस्तान को मैं सीने से लगा के रखता था और मैं चाहता था कि यहाँ बेतहाशा तरक्की हो, यहाँ के लोग रोजगार पे फायज हों। उसकी सड़कों को देखकर आज मुझे बहुत तकलीफ हुई। मेरा दिल रोता है कि ये सब कुछ ऐसा क्यों होने दिया। ये पैसा जो आप पे लगना चाहिए था क्यों नहीं लगाया गया, कहाँ लगाया वो पैसा। यहाँ अस्पताल बनाए तो हमने बनाए, बिजली के कारखाने लगाए तो हमने लगाए, ये जो नलदर का मंसूबा है हमने मुकम्मल किया है और दूसरे मंसूबे अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। और मुझे बताएं किसी और पार्टी का नाम लेके किसी ने यहाँ पे ईंट भी रखी हो। मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि गिलगित CPEC का मरकज है। इलाके के मसाइल के हल के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ से बात करूंगा। आला तालीम के लिए तुलबा को वज़ाइफ और लैपटॉप देंगे। गिलगित बल्तिस्तान में नए मंसूबों की खुद निगरानी करूंगा। टूरिज्म का मरकज बनेगा, टूरिज्म से इतना रोजगार फैलेगा कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। मानसेरा से यहाँ तक भी मोटरवे बननी चाहिए और तरक्की की हर राह खुलनी चाहिए। यहाँ पर इलेक्ट्रिक बसें यहाँ पे भी भिजवाऊंगा और स्कर्दू में भी भिजवाऊंगा। मैं इंशाल्लाह मैं जाऊंगा, शहबाज साहब को भी कहूँगा और मैं मरियम को भी कहूँगा, दोनों यहाँ आए। और अगर हमारी हुकूमत आती है तो मैं इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से यहाँ पे हर दूसरे तीसरे महीने आता जाता रहूँगा, ताकि जो मंसूबे हम शुरू करें, मैं चाहूँगा कि मैं उनकी तकमील होते हुए देखूँ।
साबिक वजीर आला हाफिज हफीजुर रहमान ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए तारीखी मंसूबे दिए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून इलाके में दानिश स्कूल्स के मंसूबों पर काम कर रही है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के आईनी मसले को कौमी सतह पर मुशावरत के बाद हल किया जाएगा। मोहम्मद फैसल राव, PTV न्यूज। और गिलगित बल्तिस्तान कोर कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को रिलीफ की फराहमी तरजीह है। अवामी नुमाइंदे मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि GB का बजट जहां के अवाम की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल होगा। मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सोलर मंसूबे देकर गिलगित बल्तिस्तान में तवानाई बहरान ख़त्म किया। उन्होंने कहा कि तालीम, सेहत और दीगर शोबों में बेहतरी के लिए खुसूसी इक़दाम करेंगे। मुस्तकबिल में नौजवानों को रोज़गार की फराहमी यकीनी बनाएंगे। हर होनहार बच्चे के हाथ में लैपटॉप होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आला तालीम सबका हक है। ख़वातीन के लिए यूनिवर्सिटी कायम करेंगे। इलेक्ट्रिक बसें गिलगित बल्तिस्तान में भी चलनी चाहिए। सदर मुस्लिम लीग नून का कहना था कि मुस्लिम लीग नून के दौरे इक़्तिदार में तरक्याती मंसूबों की बुनियाद रखी गई और तकमील तक पहुंचाया गया। बिजली के मंसूबे शुरू किए। मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत के बेपनाह मौके मौजूद हैं, इनसे इस्तेफादा करना चाहिए और इस रास्ते से चीन से तिजारत बढ़ाई जा सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्कर्दू में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ हमारा नस्लों का साथ है। गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल पर पहला हक यहाँ के अवाम का है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी गरीब तबके की नुमाइंदा जमात है। मज़ीद तफसील जानते हैं मोहम्मद उस्मान से। स्कर्दू में जलसे से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कायदे अवाम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने मजदूरों और किसानों को हकूक दिए। BISP के तहत गरीब तबके की हर मुमकिन मदद की जा रही है। पीपल्स पार्टी नौजवानों को रोजगार फराहम करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो वाहिद सियासी जमात है जो गरीब तबका का नुमाइंदगी करते हैं, जिन्होंने किसानों को, मजदूरों को, मेहनत कशों को हकूक दिया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक ही इदारा है जो हर गरीब का घर तक पहुंचता है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हमें हक हकमियत दिलवाना पड़ेगा, हक मलकियत दिलवाने पड़ेगा और जो नौजवान हैं उनके हक रोजगार दिलवाना। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान मादनियात से मालामाल है और यहाँ के वसाइल पर पहला हक मुकामी आवाम का है। उन्होंने कहा कि अमीरों की बजाय गरीब तबके की फलाह के लिए पॉलिसियाँ बननी चाहिए और अवाम दोस्त हुकूमत के लिए अवाम ने वोट के जरिए फैसला करना है। गिलगित बल्तिस्तान के पास इतना वसाइल है, इतना नेचुरल रिसोर्सेज है कि ना सिर्फ आप गिलगित बल्तिस्तान के जो बिजली का बहरान है उसको दूर कर सकते हैं, मगर हम पूरा पाकिस्तान को गिलगित बल्तिस्तान से बिजली पहुंचा के आपको मुआशी तौर पे बनाएंगे। पीपल्स पार्टी के हुकूमत बनाएंगे ताकि मैं आपको स्कर्दू से लेके गांजे तक मैं मुफ्त इलाज का जाल बचा सकूं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को वो जो तमाम वादे जो कायदे अवाम के थे, जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के थे, इंशाअल्लाह ताला मैं और आप मिलके तमाम वादे पूरे करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि दूसरे सूबों की तरह गिलगित बल्तिस्तान को भी इख्तियारात मिलने चाहिए। उन्होंने अवाम से अपील की कि 7 जून को तीर पर ठप्पा लगाकर अवामी हुकूमत बनाएं। मोहम्मद उस्मान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार और कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जर्राह जाबिर अल अहमद अस-सबाह के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कुवैत के वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार और अमरीका और ईरान के दरमियान मुसलसल सालसी के किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म ने खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए सफारतकारी और रवाबित के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान मजबूत बिरादराना ताल्लुकात के अज़्म का इआदा किया और आइंदा भी करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया। और अब बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से अहम खबर आपको देते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का है कहना कि ईरान के साथ मुआहदा मुमकिना तौर पर अगले हफ्ते में तय पा जाएगा।
अमरीकी नशरियाती इदारे ABC को दिए गए इंटरव्यू में अमरीकी सदर ने इस उम्मीद का इजहार किया कि ईरान के साथ जंगबंदी में तोसी और आबनाए हुर्मुज को दोबारा खोलने के हवाले से एक मुआहिदा अगले हफ्ते तक तय पा जाएगा। उन्होंने कहा कि सूरत हाल अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी। सदर ट्रंप ने कहा कि आज एक छोटा सा मसला पेश आया, लेकिन जैसा कि आपने देखा ही होगा कि मैंने उसे बहुत जल्द हल कर दिया। उनके मुताबिक ये मसला लबनान में इसराइली हमलों पर ईरानी नाराज़गी के बायस पैदा हुआ था। अमरीकी सदर ने कहा कि मैंने हिजबुल्लाह और इसराइली वज़ीर आज़म से भी बात की और कहा कि फायरिंग न करें। फरीकैन ने एक दूसरे पर फायरिंग बंद कर दी। और अमरीका की लबनान में इसराइली कार्रवाइयाँ रुकवाने के ऐलान के बावजूद सेहूनी जारहियत जारी है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक सदर ट्रंप ने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोन पर सख्त लहजे में बात की और लेबनान में जारियत रखने पर वो इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के साथ इंतहाई बरहमी से पेश आए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान इजरायली वज़ीर-ए-आज़म पर शदीद बरहम हुए। उन्होंने लेबनान पर जारी रखने पर इजरायली वज़ीर-ए-आज़म को पागल और नाशुक्रा शख्स करार दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि अगर मैं ना होता तो तुम करप्शन ट्रायल में जेल में होते। हर शख्स अब तुमसे और इजराइल से नफरत करता है। सदर ट्रंप ने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म को सख्त तनबीह करते हुए कहा कि बैरूत पर हमले नहीं होने चाहिए, वरना इजराइल दुनिया में मजीद तन्हा हो जाएगा। ईरान अमरीका जंग बंदी में पाकिस्तान के सालसी किरदार की दुनिया मोतरफ है। दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के मौसर सफारती किरदार को यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराह काया कैलिस ने भी काबिल सताइश करार दिया है। तफसील जानते हैं किंजा नकवी से। पाकिस्तान आलमी अमन का अलम बरदार। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने और जंगबंदी की कोशिशों में मौसर सिफारती किरदार को दुनिया भर में पजीराई मिल रही है। आलमी जरीदे अल अरेबिया के मुताबिक यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराह काया कैलिस ने भी पाकिस्तान की कायदाना सलाहियतों और कामयाब सिफारतकारी को भरपूर अंदाज में सराहा है। Pakistan has been the main mediator between United States and Iran. Your diplomatic efforts have helped to prevent a return to full-blown war on several occasions. And these efforts are much recognized and appreciated across Europe. रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद रुकावटों को दूर करने में अहम किरदार अदा किया। दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी के लिए पाकिस्तान ने न सिर्फ सिफारती राब्तों के जरिए मुज़ाकरात की राह हमवार की, बल्कि दोनों ममालिक के वफूद के दरमियान तवील बराह रास्त मुज़ाकरात की मेज़बानी भी की। माहिरीन का कहना है कि अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी में पाकिस्तान का किरदार आलमी बिरादरी के पाकिस्तान पर एतमाद और इसकी बढ़ती हुई बैनुल अक़वामी अहमियत का अक्कास है। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। 24 मई को ट्रेन के वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान के अजला मस्तोंग, नोश की, जहरी, खुजदार और केच में इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशंस में फितनतुल हिंदुस्तान के 17 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा, बारूदी मवाद और IEDs बरामद की गई हैं। हलाक दहशतगर्द मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलविस थे। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पाकिस्तान से बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया है। सदर ममलकत ने मस्तोंग, नोशकी, जहरी, खुजदार और केच में दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों में 17 दहशतगर्दों को हलाक करने को सराहा। उन्होंने कहा कि मुल्क से बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के नासूर का जड़ से खात्मा करना अवलीन तरजीह है। सदर ममलकत ने कहा कि फितनतुल हिंदुस्तान और इसके सहूलतकारों के मज़मूम अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज और क़ानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों और ख़िदमात को कदर की निगाह से देखती है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबियाँ पूरी कौम के अज़्म और इत्तेहाद की अक्कास हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द अनासिर के नापाक अज़ाइम को हर कीमत पर नाकाम बनाया जाएगा।
वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशत गर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए हुकूमत सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना है। पाकिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के गयूर अवाम को मुल्क के दीगर सूबों की तरह बराबरी के बुनियादी और मुकम्मल आइनी हुकूक मिलने चाहिए। GBA आर्ट्स करदू 2 में इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार हाजी अकबर ताबान की रिहाइशगाह पर पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आकर अवाम की महरूमियों को ख़त्म करने और उन्हें कौमी धारे में शामिल करने के लिए पार्लियामेंट में मौसर आवाज़ उठाएगी। साद रफ़ीक ने कहा कि मुस्लिम लीग नून अवाम की खिदमत और उनके मसाइल हल करने पर यकीन रखती है। उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग के दौर में बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम हुआ है और गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात में 4 ही दिन बाकी रह गए हैं। 24 आम नशस्तों के लिए इंतखाबात के लिए सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों की मुहिम जारी है। सूबाई असम्बली के इंतखाबात 7 जून को हो रहे हैं। इस हवाले से देखते हैं अनीता अजीज की ये रिपोर्ट। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के 24 आम नशस्तों के इंतखाबात के लिए सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों की मुहिम जारी है। सूबाई असम्बली के इंतखाबात 7 जून को हो रहे हैं, जिसके लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान 3 डिवीजनों पर मुश्तमिल है, जिनमें से एक दियामर अस्तोर डिवीजन है। इस डिवीजन में गिलगित बल्तिस्तान के हल्के GBA 13 से GBA 18 तक के हल्के शामिल हैं। GBA 13 अस्तोर 1 में वोटरों की कुल तादाद 44,056 है, जबकि GBA 14 अस्तोर 2 में वोटरों की तादाद 36,921 है। इसी तरह GBA 15 से 18 तक के हल्के जिला दियामर में है, जहां कुल वोटरों की तादाद 1,58,714 है। हल्का GBA 15 दियामर 1 में थक, नियाट, बाबूसर, गुनेरफॉर्म, गौहराबाद, रायकोट और थलीची के इलाके शामिल हैं। हल्का GBA 16 दियामर 2 में चिला शहर, बुटोगा और मुजाफाती इलाके, हल्का GBA 17 दियामर 3 में दरेल, खनबरी और डोडोशाल, जबकि हल्का GBA 18 दियामर 4 में वादी तंगिर शामिल हैं। दियामर डिवीजन के इन तमाम हल्कों में इलेक्शन मुहिम जोरों शोर से जारी है। अनीता अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। सदर आसिफ अली जरदारी ने इटली की क़यादत और अवाम को उनके यौम जमहूरिया पर मुबारकबाद देते हुए कहा है कि पाकिस्तान इटली के साथ अपने देरीना दोस्ताना ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है, जो कि बाहमी एतमाद, ताउन और अमन और खुशहाली के लिए मुश्तरका अज़्म पर मबनी है। अपने पैगाम में सदर ममलकत ने कहा कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ अपने रवाबित को बहुत अहमियत देता है और बैनुल अक़वामी ताउन, अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए इटली के तामीरी किरदार को सराहता है। सदर ममलकत ने बाहमी दिलचस्पी के शोबों में पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इरादा करते हुए इस यकीन का इज़हार किया कि आने वाले बरसों में पाकिस्तान और इटली के 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद फ़रोग़ पाएंगे। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का एक और बड़ा एहसास, मुल्क की तारीख में पहली मरतबा बच्चों और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब के 2 मनसूबे अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर शॉर्टलिस्ट, मनसूबों की अफादियत का एतराफ़ किया गया। मनसूबे क्या हैं, तफसील जानते हैं वर्दा सलीम से। पंजाब हुकूमत जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इंसानियत की खिदमत में पेश है। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक वज़ीर आला मरियम नवाज का वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी मेरा प्यारा प्रोजेक्ट दुनिया के टॉप 5, जबकि वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन दुनिया भर के टॉप 20 प्रोजेक्ट्स में शॉर्ट लिस्ट हुआ है। बच्चों और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब का मॉडल आलमी सतह पर तस्लीम किया गया है और अक़वाम मुत्तहिदा की फहरिस्त में शामिल होना न सिर्फ पंजाब बल्कि पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी के जरिए बच्चों से मुतल्लिक 1,45,000 से ज़ायद केसेस निपटाए गए, 77,000 से ज़ायद गुमशुदा बच्चे बाजियाब किए गए, जबकि 3,000 स्पेशल बच्चों को भी तलाश करके खानदानों से मिलवाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा WSIS इनामात 2026 में पंजाब का वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी मेरा प्यारा आलमी चैंपियन प्रोजेक्ट करार पाया, जबकि पंजाब हुकूमत के वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन को भी दुनिया भर के बेहतरीन मंसूबों में शुमार किया जा रहा है। पाकिस्तान WSIS कैटेगरी में 2 शॉर्ट लिस्ट शुदा प्रोजेक्ट के साथ दुनिया का वाहिद मुल्क बन गया है।
दोनों प्रोजेक्ट पंजाब से हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मेरा प्यारा यूएन ग्लोबल चैंपियन करार दिए जाने पर इजहार तशक्कुर किया है और कहा है कि अवामी खिदमात के मोतबर फोरम अक़वाम मुत्तहिदा के तहत WSIS प्राइसिस डिजिटल गवर्नेंस पर पंजाब के 2 प्रोग्राम का शामिल किया जाना एजाज है। इस मंसूबे की आलमी सतह पर पजीराई टेक्नोलॉजी पर मबनी अवामी खिदमात की आलमी सतह पर एतराफ का सबूत है। उन्होंने ये एजाज मिलने पर मेरा प्यारा प्रोजेक्ट की टीम को मुबारकबाद दी और कहा कि आलमी एतराफ हुकूमत की अवाम दोस्त गवर्नेंस इस्लाहात का एक मजबूत एतराफ है। वज़ीर आला ने इस अज़्म का यादा किया कि पंजाब हुकूमत अवामी खिदमात के नए रिकॉर्ड कायम कर रही है और इन खिदमात की आलमी सतह पर हौसला अफजाई काबिल तहसीन है। वरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। उधर भारत की रियासत मणिपुर में बेरहम बीजेपी सरकार की सफाकियत की इंतहा, जबकि कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी के खात्मे पर इंतहा पसंद हिंदू तंजीमें मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने लगी। मजीद बताएंगी सदफ अफजल अपनी रिपोर्ट में। भारतीय रियासत मणिपुर के बेगुनाह अवाम को निशाना बनाकर और घरों को नजर आतिश करके मोदी इंतकामी सियासत पर उतर आया। मणिपुर के अलहदगी पसंद गिरोहों के सामने बेबस भारतीय फौज अपने हत्थे शहरियों पर ताकत आजमाने लगी। भारतीय जरीदे इंडिया टुडे के मुताबिक जिला कांगपो कपी के गांव खाराम वाईफई में लगने वाली आग से 5 मकानात मुकम्मल तबाह हो गए हैं। कुकी तंजीमों ने वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात और जिम्मेदार अनासर के तयन का मुतालबा कर दिया। वाक़या चर्च रहनुमाओं के कत्ल में इंसाफ और 14 यरगमाल अफराद की रिहाई के लिए जारी कुकी जो तंजीमों की एहतजाजी रैलियों के दौरान पेश आया। मणिपुर के मज़ाहमती गिरोह के ट्वीट के मुताबिक भारतीय अस्करी गिरोह आसाम राइफल्स ने मणिपुर के इलाके उखरोल में बेगुनाह लोगों पर फायरिंग करके घरों को आग लगा दी। आलमी माहरीन के मुताबिक मणिपुर में अंदरूनी खलफिशार के बाइस बदमनी अरूज पर और अमनो अमान की सूरत हाल बेकाबू हो चुकी है। कांग्रेस के ज़ेरे इक़्तिदार रियासत कर्नाटक में बीजेपी के इंतहा पसंद फैसले कलअदम करार। भारत में इंतहा पसंद हिंदू तंजीमें बेलगाम हो गयी। बीजेपी के ज़ेरे असर भारतीय तालीमी इदारों में बिलखसूस मुसलमानों के मजहबी लिबास के हवाले से तनाज़ा दोबारा जन्म लेने लगा। भारतीय रियासत कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी के खात्मे पर इंतहा पसंद हिंदू तंजीमें मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने लगी। भारतीय जरीदे इंडिया टुडे के मुताबिक कर्नाटक में मुस्लिम दुश्मनी में अंधी इंतहा पसंद हिंदू तंजीमों ने हिजाब के खिलाफ मतनाज़े सैफरन शॉल मुहिम का आगाज कर दिया। श्री राम सेना और दीगर हिंदू तंजीमों के अरकान ने सैफरन शॉल मुहिम के तहत तुलबा में चादरें तकसीम की। इंडिया टुडे के मुताबिक कांग्रेस हुकूमत ने 2022 में बीजेपी हुकूमत की तालीमी इदारों में हिजाब पर आयद पाबंदी को खत्म कर दिया था। मुस्लिम दुश्मनी पर कायम बीजेपी ने कांग्रेस हुकूमत पर वोट बैंक और खुशनुदी का रिवायती इल्जाम आयद कर दिया। 2022 में भी कर्नाटक में मुस्लिम तुलबा के हिजाब पहनने पर हिंदुत्वा गुंडों की जानिब से नफरत अंगेज नारे लगाए गए थे। वज़ीर आला बिहार नीतीश कुमार ने सरकारी तकरीब में मुस्लिम खातून का नकाब खींचकर मजहबी आज़ादी पर सवालिया निशान लगा दिया था। मोदी के जहरीले हिंदुत्वा नजरिए ने नाम नेहाद सेकुलर भारत के ढोंग को दुनिया भर में बेनकाब कर दिया है। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अफगान तालिबान रजीम की अमन के वादों के बरक्स दहशतगर्दी जारी है। अफगान तालिबान रजीम का भयानक चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हो गया। तालिबान रजीम दहशतगर्द ग्रोहों के खात्मे के बजाय खित्ते को गैर मुस्तहकम करने वाले शरपसंदों की पुष्पनाही में मसरूफ़ है। अमरीकी जरीदे यूरेशिया रिव्यू के मुताबिक अफगान दहशतगर्द तंजीमों का गढ़ और तालिबान फितनतुल खवारिज, अलकायदा और दीगर दहशतगर्द ग्रोहों की मेज़बानी और सरपरस्ती कर रहे हैं। तालिबान की दहशतगर्दों और अस्करियत पसंदों के बुनियादी ढांचे को ख़त्म न करने की ज़िद ने अफ़गानिस्तान को दहशतगर्दों की महफूज पनागाह बना दिया है। रूसी और अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों के मुताबिक अफ़गानिस्तान में फितनतुल खवारिज, अलकायदा और दीगर तंजीमों से वाबस्ता हज़ारों गैर मुल्की जंगजू मौजूद हैं। अमरीकी जरीदे ने मज़ीद लिखा कि अलकायदा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमलों के लिए फितनतुल खवारिज को तरबियत, मुशावरत और जंगी मावनत फराहम करके ख़ित्ते के अमन को दाव पर लगा रही है। मकबूजा जम्मू कश्मीर के ज़िला राजौरी में भारतीय फोर्सेस की बड़े पैमाने पर मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई आज मुसलसल 11वें रोज़ भी जारी रही, जबकि पूरे ज़िले में फायरिंग और ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। KMS के मुताबिक फ़ौजी ऑपरेशन ज़िले के इलाकों गंभीर मोगला और डोरीमल में जारी है।
ऑपरेशन में भारतीय फौज, पैरामिलिट्री, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, पुलिस का स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और विलेज डिफेंस गार्ड्स के एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। काबिज फोर्सेस के एहलकारों ने इलाके के तमाम रास्तों को सील कर दिया है और वो घर घर तलाशी ले रहे हैं। काबिज फोर्सेस को फौजी हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन, सुराग रसां कुत्तों और पैरा कमांडोज की मदद हासिल है। पूंछ, किश्तवाड़ और बारामूला इजला में भी मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां जारी हैं। जम्मू में भारतीय पुलिस ने सदरा के इलाके रायका बांडे के जंगलात में मकानात मिस्मार करने की मुहिम के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन पर फायरिंग कर दी। मकानात मिस्मार करने की मुहिम से दर्जनों खानदान बेघर हो गए हैं। मकामी लोगों का कहना है कि मुजाहिरीन पुरअमन थे, लेकिन भारी तादाद में भारतीय फोर्सेस की तैनाती की वजह से झड़पें शुरू हुईं। मकामी रहनुमा चौधरी तालिब हुसैन को यकजहती मार्च की क़यादत करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि मकानात मिस्मार करने के पीछे बीजेपी का हाथ है। खटुआ, उधमपुर और हिंदवाड़ा में भी कश्मीरियों ने भारतीय हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए। लेह एपेक्स बॉडी ने भारतीय वज़ारत दाखिला के साथ अपनी मीटिंग के मिनट्स पर यह कहते हुए दस्तखत करने से इनकार कर दिया है कि मोदी हुकूमत ने जानबूझकर दस्तावेज में अहम मुतफ़क्का निकात को शामिल नहीं किया। मकबूजा जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के नाम निहाद यूनियन टेरिटरी की हैसियत को गवर्नेंस का बदतरीन मॉडल करार दिया। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि मुंतखब हुकूमत से नताइज की तवक्को तो की जाती है, लेकिन उससे इंतज़ामी उमूर पर हकीकी इख्तियार हासिल नहीं है। उन्होंने जम्मू कश्मीर की मुकम्मल रियासती हैसियत की बहाली का मुतालबा दोहराया। और बुलेटिन में एक बार फिर से शामिल करेंगे कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात में उसके जौहरी प्रोग्राम के ऐसे पहलू भी ज़ेर बहस आ सकते हैं जिन पर तेहरान माजी में बात करने से इनकार करता रहा है। वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने अमरीकी कानून साजों से गुफ्तगू में कहा कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम के बाद ऐसे मामलात पर बातचीत मुमकिन है जिनका सिर्फ 1 माह या 1 साल पहले तक जिक्र करने से भी ईरानी हुक्काम गुरेज करते थे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक मुज़ाकरात में पेशरफ्त के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन हतमी नतीजा अब भी गैर यकीनी है और ये कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा कि आया दोनों ममालिक किसी ऐसे माहदे पर मुत्तफ़िक़ हो सकेंगे जो फ़रीक़ैन के लिए काबिल कबूल हो। और इसराइली फ़ज़ाई हमले जनूबी लबनान के मुख्तलिफ इलाक़ों में बदस्तूर जारी हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली जंगी तैयारों ने जनूबी लबनान के अहम शहर सौर में जबल आमिल अस्पताल के नज़दीक बमबारी की। लेबनानी वज़ारत सेहत का कहना है कि इसराइली बमबारी में 4 अफराद जाँ बहक हुए। बमबारी में हस्पताल के 39 तिब्बी अमले समेत 127 अफराद ज़ख्मी भी हुए। दूसरी जानिब लेबनान की सरकारी मीडिया के मुताबिक लेबनान और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर वाशिंगटन में अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर्स में शुरू हो गया है। और यहाँ पर खबर आपको देंगे PSX से। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान। 100 इंडेक्स में 421 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,71,021 पर बंद हुआ। तफसील जानते हैं सोहेल जमाली की रिपोर्ट में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मुस्बत आगाज हुआ और पूरे दिन तेजी का रुझान रहा। शेयर बाजार में ऑटोमोबाइल असेंबलर्स, बढ़ती मसनूआत, केमिकल, सीमेंट, इंजीनियरिंग, कमर्शियल बैंक्स और फूड इंडस्ट्री समेत तकरीबन तमाम ही बड़े शोबों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा देखा गया। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों, टैक्स निज़ाम में बेहतरी, बरामदात और बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र में इजाफे समेत मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार ने सरमायाकारों का एतमाद पूरी तरह बहाल कर दिया है। जो ईरान के तनाज़ात हैं, मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट है, वो रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहा है। वो डील बनेगी यूएस के साथ। आई थिंक कि ये बात पर ही जो है मार्केट जो है, एशियन मार्केट सारी पॉजिटिव हैं। इस वक्त फाइनेंशियल रिजल्ट जो है कि ये लास्ट मंथ है, इसमें अर्निंग सीजन जो है इसके बाद आएगा, तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट देखा जा रहा है। प्री बजट जो है रैली मार्केट में देखी जा रही है और उसकी वजह यही है कि बजट के अंदर जो हदफ है 17.1 ट्रिलियन का, उसको काफ़ी पॉजिटिव लिया जा रहा है डेवलपमेंट आउटले के पॉइंट ऑफ व्यू से, और गवर्नमेंट की जो तरजीहात है कैपिटल मार्केट के अंदर लिस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशन देखी जा रही है। तज्जियाकारों के मुताबिक मार्केट में तेजी की बड़ी वजह स्टेट बैंक की तरफ से शरह सूद में कमी है। इसके साथ ही आलमी मालियाती फंड के साथ मामलात में पेशरफ्त और दोस्त ममालिक की तरफ से सरमायाकारी की खबरों ने भी स्टॉक मार्केट के कारोबार में इजाफा किया। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस दौरान खैबर पख्तूनख्वा में अमन आमा की सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए उठाए गए इक़दाम का जायज़ा लिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ
मुकम्मल ताउन कर रही है। दोनों रहनुमाओं ने फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस पर फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। वफाकी वज़ीर कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ राना तनवीर हुसैन कहते हैं कि पाकिस्तान में मशरूबात और जूस का शोबा महज एक सनती शोबा नहीं बल्कि ज़राई मईशत, फल उगाने वाले काश्तकारों, प्रोसेसर्स, देही रोज़गार और कौमी ग़िज़ाई नताइज से गहरा ताल्लुक़ रखता है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि टैक्स पॉलिसी माली नज़्म ज़ब्त और अवामी सेहत के फ़रोग़ का अहम ज़रिया है। ताहम मौजूदा यकसा फेडरल एक्साइज ड्यूटी निज़ाम मुख्तलिफ ग़िज़ाई खुसूसियात, फलों के तनासुब और ग़िज़ाई अफादियत रखने वाली मसनूआत में मुनासिब फ़र्क नहीं रखता। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास वज़ीर आला हाउस कराची में हुआ। इजलास में सूबे भर की पानी और निकासियाब के 16 तरक्याती स्कीमों के लिए 8 अरब 82 करोड़ 50 लाख रुपए इजाफी फंड्स की मंजूरी दी गई। काबीना ने कराची मेगा प्रोजेक्ट के तहत 11 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों की मंजूरी दी, जिनकी मजमूई लागत 11 अरब 19 करोड़ 80 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। सूबाई काबीना ने बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के 85 करोड़ 70 लाख रुपए से ज़ायद के नज़रसानी शुदा प्रोक्योरमेंट प्लान की भी मंजूरी दी। रुकने कौमी असम्बली और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा रिटायर्ड कैप्टन मोहम्मद सफ्तर ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून तरक्की का निशान है। गिलगित में PTV से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की जब भी हुकूमत आई मुल्क में तरक्याती मनसूबे शुरू हुए। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके इलाके की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए काम करेंगे। हिली शरीफ खानपुर में साईं अब्दुल्ला सरकार का 66वां सालाना उर्स जोशो खरोश के साथ मनाया गया। इलाके के लोगों की बड़ी तादाद ने उर्स में शिरकत की। इस मौके पर कव्वाली और मकामी सकाफत के मुताबिक तकरीबात का इनेकाद भी हुआ। गद्दी नशीं साईं शहरियार ने अपने खिताब में कहा कि औलिया कराम के फयूज़ व बरक़ात की वजह से इलाके में अमन का बोलबाला हुआ। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, NDMA के नेशनल एमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर ने 6 जून तक पहाड़ी इलाकों में मुमकिना लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। NEOC से जारी बयान के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में जारी बारिशों और पिघलते ग्लेशियर्स के बायस लैंड स्लाइडिंग के खतरात में इजाफा मुतवक्के है। चित्राल, दीर सवात, शांगला, कोहिस्तान, बटग्राम, मानसेरा, एबटाबाद और हरीपुर के इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का शदीद खदशा है। लैंड स्लाइडिंग के खतरे के पेश नज़र लवारी टनल, चित्राल तदीर, वादी सवात, शराह कराक्रम और नारान कागान रोड को हसास करार दिया गया है। आज़ाद कश्मीर में 6 जून तक लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। लैंड स्लाइडिंग के खतरे के पेश नज़र शाही, शावडा, 8 मकाम और अड़ंगकेल की राबिता सड़कें हसास करार दी गई हैं। और नाज़रीन, अब आपको आगाह करें कि रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत की तफसील क्या रही। नौकुंडी और सिब्बी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दालबंदीन में भी 47 और दादू में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दीगर शहरों में रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत की तफसील कुछ ऐसे रही। खेलों की खबरों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को दूसरे वनडे मैच में 232 रन का हदफ दिया है। जवाब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी है। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। गजाफी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 231 रन बनाए। पाकिस्तानी बॉलर्स की उम्दा बॉलिंग के बायस ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज बड़ी इनिंग्स न खेल पाए।
एलेक्स कैरी 0, मैथ्यू शॉर्ट 15, मानस लविशन 5 रन बना सके। कैमरॉन ग्रीन ने 53 और जॉश इंग्लिस ने 51 रन की इनिंग्स खेलकर अपनी टीम की पोजीशन को बेहतर किया। मैट रंचा ने 43 और ओलिवर पीक ने 31 रन स्कोर किए। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी ने 3 विकेटें हासिल की। हारिस रऊफ, इरफात मिनहास और अबरार अहमद के हिस्से में 2-2 विकेटें आईं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान को वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2028 की मेजबानी सौंपने की मंजूरी दे दी है। आईसीसी इजलास में इवेंट के इंतजामी और शेड्यूलिंग मामलात की मंजूरी दी गई। एलामिया में कहा गया कि वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2028 में मजमूई तौर पर 12 टीमें हिस्सा लेंगी। इवेंट का मुकम्मल शेड्यूल आइंदा साल जारी किया जाएगा। आईसीसी ने वाज़ेह किया है कि मेजबान पाकिस्तान में टूर्नामेंट के मैचेस होंगे, ताहम भारत की टीम अपने तमाम मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगी। पाकिस्तान ने अंडर 17 एशियन बीच रेसलिंग चैंपियनशिप में 1 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीत लिया। वियतनाम में होने वाली चैंपियनशिप में 90 किलोग्राम कैटेगरी में पाकिस्तान के मोहम्मद उस्मान लगारी ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए गोल्ड मेडल और एशियन चैंपियन का एहसास हासिल किया। मोहम्मद उस्मान ने वियतनाम, मंगोलिया, चीन, कजाकिस्तान और फाइनल में दोबारा वियतनाम के पहलवान को हराकर नाकाबिल शिकस्त रहते हुए सोने का तमगा हासिल किया। 70 किलोग्राम कैटेगरी में पाकिस्तान के हसन अली भोला चांदी के तमगे के हकदार ठहरे। हसन अली ने उर्दन के 2 पहलवानों, सऊदी अरब के 1 और वियतनाम के 2 पहलवानों को शिकस्त दी। सेमीफाइनल में चीन के पहलवान को हराकर फाइनल तक रसाई हासिल की। खेलों की खबरों से इतना ही। अब आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। शुक्रिया अनीस। खबरनामा मुकम्मल करते हुए जुबैर अहमद सिद्दीकी और उस्मा चौधरी को अपनी न्यूज़ टीम के हमरा दीजिए इजाज़त। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप PTV न्यूज़ के साथ रहिएगा।